السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج قرآن کی کلاس میں شروع کریں گے ہم لوگ سورہ بروج۔ پچھلی کلاس میں سورہ طارق کمپلیٹ ہو گیا تھا، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ بروج۔ تو ایک ایک آیت کو تفصیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ تو آیت نمبر 7 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سب سے پہلے دیکھیے وَالسَّمَاءِ، ابھی دیکھیے یہاں پر کیا ہے، وَالسَّمَاءِ، واو کو جب سین سے ملائیں گے تو سین کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے۔ تشدید میں نے بھی پڑھایا ہے اور آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا کہ تشدید کا کیا کام ہے۔ تشدید پیچھے والے حرف سے ملتا ہے اور ایک بار خود اسے مطلب کہ تشدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ میں نے بھی پڑھایا ہے اور یہ آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا جب آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوگا۔ تو یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ سین کو کیا کرنا ہے، 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو واو کو سین سے ملا دیا، اس کے بعد سین زبر سا، پھر 1 مرتبہ پڑھا، وَسَّا ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے میم الف مد زبر ما حمزہ زیر ای، اب یہاں پر کیا آ گیا، مد آ گیا۔ اب مد آتے ہی آپ کے خیال میں یہ آ جانا چاہیے کہ مد آ گیا تو الف مدہ سے زیادہ کھینچنا ہے، اور مد کی مقدار کیا ہے، 4 سے 5 الف کے باقدر، یعنی کہ 4 سے 5 سیکنڈ تک ہمیں کھینچنا ہے۔ یہ آ گیا ذہن میں۔ لیکن اب جو ہم لوگ پڑھیں گے اب تو اس میں ہم لوگ یہ بھی غور کریں گے، جہاں جہاں بھی مد آئے گا تو وہاں پر غور کریں گے، یہ مد تو ہے پر مد کی کون سی قسم ہے۔ مد کی 3 قسمیں پڑھے ہیں نا ہم لوگ نورانی قاعدے میں، کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں جو نورانی قاعدے کے حساب سے۔ ویسے تو 4 قسمیں ہیں، ایک کا بیان نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، لیکن نورانی قاعدے میں ہم لوگوں نے 3 کا بیان پڑھا ہے۔ تو وہاں پر جو 3 مد کا بیان پڑھا ہے اس کو اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ قرآن میں غور کرنا ہے، جہاں جہاں بھی مد آئے گا وہاں پر دیکھنا ہے کہ جو میں نے مد کی 3 قسمیں پڑھائی ہے یا آپ نے جو پڑھی ہے اس میں سے کون سا مد ہے۔ تو یہاں دیکھیے وَالسَّمَاءِ، اب یہاں دیکھیے پہلا جو مد کا قسم ہم لوگوں نے پڑھا تھا یعنی کہ مد متصل، اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں اگر حمزہ آتی ہے تو وہ کیا ہے، مد متصل ہے نا، یہ پڑھا تھا۔ تو یہ دیکھیے میم الف زبر ما، یہ حروف مدہ ہے نا، الف مدہ ہے، حروف مدہ کتنے ہیں، الف یا واو اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ مدہ میں آتے۔ تو یہاں دیکھیے ما جو ہے الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے جسٹ بعد اسی کلمے میں کیا آ رہا ہے، کون سا حرف آ رہا ہے، حمزہ۔ تو حمزہ یہ پہلا والا قاعدہ میں چلا گیا، مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آتی ہے تو مد متصل ہوگا۔
तो ये कौन सा मद हो गया, मद्दे मुत्तसिल, है ना। तो इसी तरह से जब अब हम लोग जो आगे पढ़ते चले जाएंगे कुरान को, वहां पर हर चीज को गौर करते चले जाएंगे। पहले से भी गौर करते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे नूरानी कायदे की सबक आगे बढ़ रही है, तो उसी तरह से जो जो चीजें हम लोग वहां पर पढ़ेंगे नूरानी कायदे में, उन सारी चीजों को यहाँ पर गौर करना है कुरान में, ठीक है। तो ये अब मुझे समझ में आ गई कि क्या है, मद्दे मुत्तसिल है, और ये हमको पहले से ही पता है कि मद जहां पर भी आ जाता है हमें ज्यादा खींचना है। तो अब हमको समझ में आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, वस्समाई, वस्समाई, इस तरह से खींचना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़ातिल, 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 ज़ा क्यों खींचा, क्योंकि अलिफ मद्दा का कायदा है। कैसे, अलिफ खाली है ना, खाली अलिफ, कोई हरकत नहीं है, और उससे पहले क्या है, जबर है। अलिफ खाली से पहले जबर आता है, कोई भी हर्फ हो, ये जो जाल हर्फ है यहाँ पर, जाल के अलावा कोई भी हर्फ हो और उसके ऊपर जबर अगर आती है तो वो क्या है, अलिफ मद्दा, ठीक है। और अलिफ मद्दा को हम किस तरह पढ़ते हैं वो हमें पता है, हमने नूरानी कायदा में पढ़ रखा है कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के मिकदार के बाकदर खींचा जाता है, ज्यादा नहीं खींचते। कैसे पढ़ेंगे, ज़ा, 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 इस तरह से, इतना ही खींचना है, बहुत ज्यादा मद की तरह नहीं खींचना है। मद में खींचते हैं ज्यादा और अलिफ मद्दा में खींचते हैं सिर्फ एक अलिफ की मकदार के बाकदर। उसके बाद ता को लाम से मिला दिया, तालाम जेर तिल, बा पेश बू, रा वा पेश रू। अब यहाँ देखें कि रा जो है, रा वा पेश रू जो करेंगे तो रा को हम क्या रखेंगे, जाहिर बात है रा के ऊपर क्या है, पेश है। रा के ऊपर जब भी पेश आए या जबर आए तो क्या है कायदा कि रा को पुर रखना है। तो रा को पुर रखते हुए वाव से मिलाएंगे, तो अब रा वा पे शुरू, यानी कि कौन सा कायदा में चला गया, वाव मद्दा का कायदा। कैसे, देखिए वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है। नूरानी कायदा में हमने पढ़ाया है वाव मद्दा का कायदा कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और वाव मद्दा को एक अलीफ की मकदार के बाकदर खींचकर पढ़ेंगे। जिस तरह यहाँ जा को खींचा था उसी तरह रू को भी खींचना है। दोनों की मकदार कितनी है, सेम है, एक अलीफ के बाकदर। तो अब हमको पता हो गया यहाँ पर खींचना है और यहाँ पर खींचना है, ठीक है, एक अलीफ के मकदार के बाकदर। और ये जो मद है यहाँ पर 3 से 4 अलीफ के मकदार के बाकदर खींचना है। अब समझ में जब आ गया सारा कायदा और अंडरलाइन करके लिख लिया, अब इसको मश्क करेंगे किस तरह से, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, बुरू हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, जीम है, जीम है, और जीम के बाद क्या है, आयत का गोल निशान है, मतलब कि यहाँ पर हमें रुकना है ना, रुकने का है। ऐसे गोल निशान को क्या कहते हैं, वक्फ, आयत कहते हैं, वक्फ कहते हैं। वक्फ करना है यानी कि ठहरना है, स्टॉप कर देना है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो आखिरी हर्फ पर क्या लाएंगे, जज्म लाएंगे। रुकने का क्या कायदा है कि जब हम रुकेंगे तो आखिरी हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश या 2 जेर या 2 पेश हो तो उस हर्फ की हरकत को हटाकर उसके ऊपर जज्म लाना है, यही है ना कायदा। तो यहाँ पर देखिए जिम के नीचे क्या है, जेर है, जेर है तो जेर हट जाएगी और क्या लाएंगे, जज्म लाएंगे, यानी कि सुकून ले आएंगे यहाँ पर। तो अब जब सुकून ले आएंगे तो जीम कौन सा हर्फ है, कलकला वाला हर्फ है। तो अब जब सुकून लाएंगे तो यहाँ पर तो जब हम रुकेंगे, जब हम वक्फ करेंगे तो कलकला करना जरूरी है ना। तो किस तरह करेंगे, किस तरह रुकेंगे, और गौर से सुने, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, 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 यानी कि ये जो हो रहा है ना वही हो रहा है कलकला। अगर कोई पढ़ता है
वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कलकला नहीं हुआ। एक बार फिर मैं करती हूँ, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कलकला नहीं हुआ। अब हम कलकला करके पढ़ रहे हैं, उसे भी गौर से सुने। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, बुरूज बुरूज, ये जो निकल रहा है ना टकरा के, वो हो रहा है कलकला। तो यहाँ पर क्या करना है, कलकला करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वल यौमिल मौऊद, द द, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कलकला हो रहा है, क्योंकि ये जो दाल है उस पर भी जब हम वक्फ करेंगे तो जज्म लाएंगे ना, और दाल भी हरूफ कलकला में से है, गोया हमें यहाँ पर भी करना है कलकला। अब देखिए, वल, वाव लाम जबर वल, या वाव जबर यौ। अब देखिए लाम जो है, लाम के ऊपर क्या है, जज्म है। जज्म का कायदा क्या है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, या वाव जबर यौ, वाव साकिन है, वाव साकिन और या साकिन आएगा कभी भी तो उससे पहले की हरकत को गौर करना है। ठीक है, वाव साकिन और या साकिन, या वाव मद्दा, या मद्दा और लीन में इसी का वाव साकिन और या साकिन का ही काम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर वाव साकिन है तो उससे पहले क्या है, जबर है, जबर है ना, या के ऊपर जबर है ना। अब देखिए जज्म का क्या होता है, जज्म यहाँ भी है ना, यहाँ भी जज्म का काम है कि पीछे वाले हर्फ से जज्म मिलता है, यानी कि वाव को लाम से मिला रहे, और यहाँ भी वाव के ऊपर जो जज्म है तो पीछे वाले हर्फ को तो वाव से मिलाएंगे, मिलाने का काम तो होगा। पर यहाँ पर एक कायदा है जो जिस पर हमने गौर करना है। कौन सा कायदा है कि वाव साकिन से पहले जबर है तो वाव लीन का कायदा है, जो कि हमने नूरानी कायदा में पढ़ा है। मिलाने का काम भी है, लेकिन एक और कायदा है जो है वावलीन का कायदा। तो जब वो कायदा हम समझेंगे तभी वहां पर उस तरीके से पढ़ेंगे कि वावलीन को किस तरह बताया गया पढ़ना। वावलीन को हम नरमी के साथ और जल्द अदा करते हैं, सख्ती पैदा नहीं करते हैं, देर नहीं लगाते हैं, खींचते नहीं हैं। तो ये चीजें जब पता होगा कि वावलीन है तभी वो हम कर पाएंगे। वावलीन का जो तरीका बताया गया है पढ़ने का, तभी उस चीज को यहाँ पर हम डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये वावलीन है तो यहाँ पर क्या करना है, नरमी इख्तियार करना है ना, नरमी करना है और जल्दी करना है। किस तरह पढ़ेंगे, वल यौ, वल यौ, 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 इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, सख्ती नहीं करना है और देर भी नहीं लगाना है। उसके बाद मीम लाम जेर मिल, वल यौमिल, मीम वाव जबर मऊ, है ना। यहाँ देखिए या साकिन, वाव साकिन से पहले जबर था वावलीन, और यहाँ पर भी सेम वही कायदा है, वाव साकिन से पहले क्या है, जबर है। वल यौमिल मऊ, वल यौमिल मऊ, दोनों जगह हम लोग जल्दी अदा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है, यानी कि वाव मद्दा। अब यहाँ पर हमें खींचना है और दाल के ऊपर जज्म लाकर हमें क्या करना है, वक्फ करना है। तो देखिए यहाँ पर या वावलीन करना है और यहाँ पर भी वावलीन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वाव मद्दा। अब फर्क क्या है कि वावलीन को जल्दी पढ़ते हैं और वाव मद्दा को एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींच कर पढ़ते हैं। तो अब हमें एक ही आयत में वावलीन भी अदा करनी है और वाव मद्दा भी अदा करनी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी आवाज में कंट्रोल रखना चाहिए, हमारी आवाज में अपनी कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि हम या मद्दा, जहां पर वाव मद्दा करना है वहां पर हम खींचे और जहां पर वावलीन का कायदा है वहां पर हम जल्द अदा करें। यही चीजें जब पता होती है तो करते हैं लोग, और जिनको तजवीद की पता नहीं होती, जो तजवीद नहीं जानते, कवायद नहीं जानते, वो क्या करते, हर जगह उसी तरह करते, पढ़ेंगे वल यौमिल मऊद, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, या कुछ लोग अगर बहुत तर्ज दिखाएंगे तो पढ़ेंगे वल यौमिल मऊद, इस तरह से पढ़ेंगे, है ना।
لیکن جب تجوید پتا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ واؤلین نہیں کھینچا جاتا، صرف واو مدہ کو کھینچا جاتا ہے۔ تو اب جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر کیا کریں گے، جلد ادا کریں گے اور یہاں پر کھینچیں گے۔ کس طرح سے، غور سے سنیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، کھینچا نا، رو میں کھینچا نا، رو میں کھینچا، یعنی کہ یہاں پر مدہ ہم کر رہے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۔ اب دیکھیے موعود، موعود نہیں بولنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کون سا حرف ہے، عین ہے، اور عین کہاں سے نکالتے، حلق سے نکالتے، عین نکالنا، عین عین عین، اس طرح سے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، عود عود، دال میں قلقلہ بھی۔ کوئی پڑھتا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، ٹھیک ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۔ کیا غلطی ہوا؟ غلطی پر بھی غور کرنا ہے۔ میں نے کہا نا، آپ تجوید کو اتنا سمجھے کہ آپ کو اپنی پڑھی ہوئی، جب آپ قرآن شریف پڑھے تو آپ کو اپنی غلطی خود سمجھ میں آئے کہ میں نے یہاں پر غلط پڑھا ہے۔ آپ اتنا تجوید کو سیکھے۔ تو اگر آپ کوئی پڑھتا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، کیا غلطی کیا اس نے؟ پہلی تو غلطی کی کہ عین اس کا ادا ہی نہیں ہوا، یہاں پر حمزہ ادا ہوا، موعو ایسا، ٹھیک ہے، عین نکلا ہی نہیں۔ سیکنڈ جو غلطی ہے وہ ہے کہ دال میں قلقلہ ہوا ہی نہیں، ہے نا۔ ایک بار پھر سے پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قلقلہ نہیں ہوا اور عین بھی ادا نہیں ہوا۔ اب میں صحیح کر کے پڑھتی ہوں، قلقلہ بھی کرتی ہوں اور عین بھی ادا کرتی ہوں، تب دیکھیں سنے میں کس طرح اچھا معلوم ہوگا۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، ہو رہا ہے نا۔ اب دیکھیے دونوں آیت کو میں پڑھتی ہوں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، ہوا نا، قلقلہ بھی ہوا، عین بھی نکلا، ہے نا۔ اب چلیے آیت نمبر 3 کی طرف۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اب دیکھیے واو زبر وا، شین الف زبر شا، وشا، ہا زیر ہی، دال واو دو زیر دیوں۔ یہاں پر ہو رہا ہے کیا، ادغام ناقص کا قاعدہ۔ آگے نورانی قاعدے میں ہم لوگ پڑھیں گے ادغام ناقص کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ فی الحال یہاں پر دیر لگائیں گے۔ وَشَاهِدٍ، اس طرح سے، دیوں ناک میں آواز جائے گی، وَشَاهِدٍ، اس طرح سے۔ تو شاہ میں الف مدہ کرنا ہے، ہی کو جلد پڑھیں گے، زیر کی حرکت ہے، دال کو واو سے ملاتے ہوئے ادغام ناقص کا قاعدہ ہے۔ میں ابھی بتا دے رہی ہوں، لیکن بعد میں انشاءاللہ تعالی جب ہم نورانی قاعدے میں پہنچیں گے تو وہاں تفصیل سے بیان کروں گی میں۔ وَشَاهِدٍ ہو گیا، پھر واو کو ایک بار اور پڑھنا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ میم شین زبر مش، ہا واو پیش ہو، مش ہو، اور دال میں کیا ہے، دو زیر کی تنوین ہے، وہ ہٹ جائے گی اور لائیں گے جزم، ہے نا۔ تو مش ہو میں کیا ہے، واو مدہ، واو مدہ ہے نا، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے، کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے بقدر، اور یہاں پر ناک میں آواز جائے گی، غنہ اخفا ہوگا اور یہاں پر الف مدہ کریں گے۔ اب غور سے سنیں اور یہاں پر قلقلہ کرتے ہوئے رکنا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، ہوا نا قلقلہ، الف مدہ بھی ہوا، یہاں پر ادغام ناقص بھی ہوا، اور یہاں پر واو مدہ بھی ہوا، اور یہاں پر قلقلہ بھی ہوا۔ یہ چاروں قواعد کو ڈالنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قُتِلَ قاف پیش کو، تا زیر تی، لام زبر لا، کوئی سا قاعدہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلد ادا کرتے ہیں، کھینچنا نہیں ہے۔
हमजा स्वाद जबर अस, स्वाद को मुंह भर कर बोलेंगे, मोटे हरूफ में से है। अस नहीं बोलेंगे, अस 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 अस। हमजा को निकालेंगे और स्वाद में मिलाते हुए हमारी मुंह गोल हो जानी चाहिए। अस 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 अस। हा खड़ा जबर हा, बालाम पेश बुल, अस्हाबुल अस्हाबुल अस्हाबुल। हा हलक से अस्हाबुल। अगर हा आप लोगों की आदा नहीं होती है तो कम से कम जब भी फ्री रहे हा निकाले, ठीक है। काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस निकालते रहे, ठीक है। इसको मश्क करते रहे। हा 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 हा, इस तरह से। हाँ, जब भी हम अदा करते हैं तो गौर करें कि हलक से एक हवा की सी निकलती है ना, हा हा हा, इस तरह से। तो खूब इसको मश्क करें, अदा हो जाएगी। अस्हाबुल अस्हाबुल अस्हाबुल। हा में क्या है, खड़ा जबर है, यानी कि खींचना है। बुल, बा को लाम से मिला दिया। हमजा ख्वापेश उख, दाल वापिश दू, और दाल में कलकला वक्त की सूरत में। तो यहाँ देखें, दाल वापिश दू, यहाँ पर भी वाव मद्दा है। अब यहाँ से देखेंगे कि हा के नीचे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे खड़ा जबर का कायदा, और उसके बाद दाल वापिश दू में क्या लिखना है, वाव मद्दा का कायदा, और दाल में कलकला करना है। ये सारी चीजें हो गई। अब ये चीजें तो आपको पहले भी मालूम था ना, जबर जेर पेश है, उसको खींचना नहीं है। अच्छा, अस है, हमजा को स्वाद से मिला देंगे, बस। जज्म जहां पर भी आता है तो वहां पर देखना क्या है कि हरूफ कलकला में से है तो कलकला करना नहीं है, तो बस सिंपल पढ़ के निकल जाना है। जैसे यहाँ देखिए, स्वाद के ऊपर जज्म है और यहाँ पर खा में जज्म है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, अस उख, इस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुने। कुतिल अस्हाबुल उख्दूद, कुतिल अस्हाबुल उख्दूद, कुतिल अस्हाबुल उख्दूद। द द, ये जो हो रहा है कलकला हो रहा है। नीचे आ जाइए। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, अन्नारी, नून में क्या करना है, गुन्ना करना है, नून मुशद्दद का, ठीक है। अन्नारी, ना में फिर अलिफ मद्दा, अन्नारी, रा बारीक, ओके। नून मुशद्दद का गुन्ना, उसके बाद अलिफ मद्दा और रा को बारीक, ठीक है। आगे चलिए। ज़ातिल वक़ूद, ज़ा में अलिफ मद्दा करना है ना, अलिफ खाली से पहले जबर, अलिफ मद्दा करना है। ता को लाम से मिलाएंगे, तिल, वाव जबर वा, काफ वापिश कू, फिर यहाँ पर क्या करना है, वाव मद्दा करना है, और दाल में कलकला करना है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे पता हो गया क्या कि नून मुशद्दद का गुन्ना, उसके बाद अलिफ मद्दा, रा बारी, उसके बाद फिर यहाँ पर अलिफ मद्दा, उसके बाद यहाँ पर तो कोई कायदा नहीं, ता को बस लाम से मिलाना है, वाव को जल्द पढ़ लेंगे, आकू में वाव मद्दा, यहाँ भी अंडरलाइन करके लिख ले वाव मद्दा। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। हो गया, आगे चलते हैं। इज़ हुम अलैहा कुऊद, इज़ हुम अलैहा कुऊद। अब देखिए यहाँ पर इज़ बिल्कुल आसान, दाल से मिला देना हमजा को। हुम आसान है, हा को मीम से मिलाना है। अलैहा, आइन जबर आ, जल्द अदा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाम या जबर लई, या साकिन है और उससे पहले क्या है, जबर है, लाम या जबर लई, यानी कि यालीन का कायदा। उसके बाद हा अलिफ जबर हा, अलिफ मद्दा का कायदा। लिहाजा जब लीन और मद्दा आ गया तो मेरे जहन में आ जाना चाहिए कि लीन को नहीं खींचा जाता जबकि मद्दा को खींचा जाता। गोया
यहाँ पर लई में नहीं खींचेंगे और हा में खींचेंगे। उसके बाद काफ पेश कू जल्द अदा करना है, ऊ में वाम अदा करना है, यानी कि एक अलिफ के मकदार के बाकदर। यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख ले और दाल में कलकला। अब हम यहाँ से मश्क करते हुए पढ़ेंगे। जो चीजें मैंने देखा है ना, जो चीजें कि यहाँ पर यालीन है, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, बस उसी चीज को ज़हन में रखना है और बस यहाँ से मश्क करना शुरू करना है। क्या पढ़ेंगे? इज़ हुम अलैहा कुऊद, इज़ हुम अलैहा कुऊद, इज़ हुम अलैहा कुऊद, इज़ हुम अलैहा कुऊद, कुऊद, कुऊद। काफ भी और आइन भी दोनों मुश्किल वर्ड है, दोनों को निकालना है। कुऊद, कुऊद, कुऊद। ठीक है, आगे चले। वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद। वहुम वाव ज़बर वा हामिम पेश हुम, वहुम। अब देखिए यहाँ पर वाव के ऊपर तशदीद है। तशदीद का काम तभी होता जब यहाँ पर हम वक्फ नहीं करते तो दाल को वाव से मिला देते। कुऊदुम वहुम अला, इस तरह से। ठीक है, तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर वक्फ किया है तो यहाँ पर वाव को ज़बर की हरकत के साथ पढ़ेंगे, तशदीद का कोई काम नहीं है। वहुम बिल्कुल आसान। आला, आला, लाम खड़ा ज़बर ला और आइन को जल्द पढ़ेंगे। आला, कुछ लोग का आइन निकलता नहीं है, पढ़ते हैं वहुम अला मा यफ़अलून। तो देखिए जो 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 हर्फ है उसको कोशिश तो करें निकालने की। अगर कोशिश के बावजूद भी नहीं निकलता है तो आपको अज्र मिलेगी उस कोशिश करने पर। तो कोशिश करना है ना, हर चीज कोशिश से मिलती है ना। अगर आप ट्राई ही नहीं करें तो कैसे होगा? तो कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला निकलेगी। कुछ लोग पढ़ते हैं ना वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद। तो देखिए हर हर्फ को उसके मखरज से निकालना बहुत ज़रूरी है। एक हर्फ की भी इधर से उधर होने से, मैंने बताया ना पहले भी और आज भी बताती हूँ कि एक हर्फ भी इधर उधर हुआ तो माना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसको पूरे जो मखरज है उससे निकालना है। वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद। वहुम अला हो गया, मा में अलिफ मद्दा करना है। यफ़अलूना, यफ को या से फा से मिला दिया, आइन ज़बर आ। लू में क्या करना है? वाव मद्दा खींचना है। यफ़अलूना, यफ़अलूना। वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन, बिलमुमिनीन। इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमजा है और हमजा क्या है? साकिन है, गोया यहाँ पर झटका देना है। बिलमु, बिलमु, बिलमु। इस वाव का अब कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो हमजा है हमजा को पढ़ेंगे, मीम को जब हमजा से मिलाएंगे तो झटका देंगे। बिलमुमिनीना, मीम ज़ेर मी और नून या ज़ेर नी, या मद्दा नीना। बिलमुमिनीना, बिलमुमिनीना। शीन पेश शू, हावा पेश हू और दाल के ऊपर जज्म लाएंगे वफ जब करेंगे। शुहूद, ये भी है वाव मद्दा, यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख ले वाव मद्दा। अब चले यहाँ से मश्क करते हैं। वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद। 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 आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है आज का सबक आप लोगों ने सही से समझा होगा और बुक लेकर बैठे और अंडरलाइन करते चले जाए, पेंसिल लेकर बैठे, समझने में आसानी होगी। देखिए एक एक सूरत करके हम लोग पूरे अम्मा पारा को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे
اور اس کے بعد قرآن شریف شروع کیا جائے گا سورہ بقرہ سے انشاءاللہ تعالی. اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے مجھ سے کام لینا چاہا تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن بہت اچھے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. ایک بار میں اوپر سے تلاوت کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. آج کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. خوب پریکٹس کرے، خوب مشق کرے، نورانی قاعدے کو سمجھے. اور جو بھائی اور بہن اگر نئے ہیں میرے چینل پر تو وہ اسٹارٹنگ سے جا کر دیکھیں نورانی قاعدے کو، جو میں نے ویڈیو بنا کر ڈالا ہے اس کو دیکھے اور خوب سمجھے. قرآن کے پیچھے خوب وقت دے اور خوب محنت کرے قرآن کے پیچھے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کو جتنا بھی حسن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، اتنی بھی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں. یقین جانیے بہت اچھا لگتا ہے. اس خوبصورتی کے ساتھ کسی کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو سیکھے، سکھائے، دوسروں کو شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں پر وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں ہمارے ویڈیو تک. تو شاید آپ کے شیئر کرنے سے جو سیکھنے چاہتے ہیں وہ سیکھے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے. اللہ تعالی میری محنت کو قبول فرمائے. آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.